السلام علیکم ناظرین، 4 خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے رابطہ کریں۔ کیو میکس دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال، 3 فلورز پر مشتمل، 5th 6th 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹولی چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن کیو میکس کوہینور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ بسائڈ سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ ان کمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کے آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن ماون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے ماون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، ماون گارڈن ٹاور سالارجنگ کالونی ٹولی چوکی، ماون ہائٹس ملے پلی، ماون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، ماون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، ماون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، ماون پرل اور ماون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ماون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، ماون آشیانہ ملے پلی، ماون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن ماون گروپ بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر، اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر، بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ۔ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ ہماری پہچان، جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ حکومت ہر مستحق صحافی کے ساتھ انصاف کرے گی، صحافی پیشہ وارانہ معیار پر پورا اتریں۔ صحافیوں کو زمین الاٹ کرنے کی تقریب سے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا خطاب۔ FTL یا بفر زون میں آباد رہائشی عمارتوں کو منہدم نہیں کیا جائے گا، ہائیڈرا کی وضاحت۔ اراضی، گھر اور فلیٹ وغیرہ کی خریداری سے قبل پوری جانچ کرنے عوام کو مشورہ۔ پرجا پالنا کے دوسرے مرحلے کا 17 ستمبر سے آغاز۔ پہلے مرحلے کی درخواستوں پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، کیا اس بار بھی صرف دکھاوے کی مشق ہے؟ 4 TV کی رپورٹ۔ اور سیلاب پر سیاست کرنا ٹھیک نہیں، مرکز اور ریاست کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ کھمم کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے کے بعد مرکزی وزیر کشن ریڈی کا بیان۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ نے صحافیوں سے کہا کہ وہ پہلے خود کو صحافی ثابت کریں، حکومت ہر مستحق صحافی کے ساتھ انصاف کرے گی۔ رویندر بھارتی میں جواہر لال ہاؤسنگ کوآپریٹو سوسائٹی کے قریب 1100 صحافیوں کو مکان کے لیے زمین کے کاغذات فراہم کیے ہیں۔ ان کے علاوہ 45 فوت صحافیوں کے افراد خاندان کو فی کس 1 لاکھ روپے کے چیکس تقسیم کیے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ہر مستحق صحافی کے ساتھ انصاف کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ فیوچر سٹی یعنی 4th سٹی میں صحافیوں کو حصہ دار بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ صحافت اور صحافیوں کا معیار کم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے خود کو ثابت کریں اور صحافی کے پیمانے پر پورا اتریں، اس کے بعد حکومت کے پاس آئیں۔
वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में किसी भी चीज़ की पॉलिसी नहीं है। उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों को अपनी पहचान बनाने की ज़रूरत है, हर एक सहाफ़ी बनकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया एकेडमी के सदर गाइडलाइंस तैयार करेंगे, इसके मुताबिक काम होगा। बाज़ लोगों के काम की वजह से सहाफ़ियों का नाम ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से सहाफ़त के माने बदल रहे हैं। बाज़ सहाफ़ी सियासतदानों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए पहले आप लोग तय करें कि कौन मुस्तहिक़ है, इसके लिए तरीक़ेकार तैयार करें। इसके बाद हुकूमत के पास आएँ, हुकूमत फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि एक्रेडिटेशन कार्ड और हेल्थ कार्ड जारी करने के लिए गाइडलाइन तैयार करें। वज़ीर आला ने कहा कि पहले फ़ाइल तैयार करें, जिनको आराज़ी नहीं मिली है वो परेशान ना हो। मुस्तहिक़ सहाफ़ियों को फ्यूचर सिटी में हिस्सेदार बनाया जाएगा। फ्यूचर सिटी की तामीर में सहाफ़ी भी अपना रोल अदा करें। वज़ीर आला ने प्रेस अकेडमी की सरगर्मियों के लिए वज़ीर आला के खुसूसी फ़ंड्स के तहत 10 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया है। बाद में वज़ीर आला और वज़ीर इत्तलात व ताल्लुक़ात आमा पी श्रीनिवास रेड्डी को तहनीत पेश की गई। इस तकरीब में रियासती वज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर, रुकन असम्बली डी नागेंदर, मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी गदवाल, डिप्टी मेयर रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव, प्रेस अकेडमी चेयरमैन श्रीनिवास रेड्डी के अलावा जवाहरलाल नेहरू हाउसिंग सोसाइटी के ओहदेदार मौजूद थे। నేను ఇక్కడున్న కమిషనర్ కూడా మీ సమస్యలు మా పెద్దలు మిత్రుడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి నేను సూచన చేస్తున్నా. వీళ్ళ అక్రిడేషన్ కార్డులు కానీ భద్రత హెల్త్ ఇష్యూలో కానీ ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ ఏమున్నా శాశ్వత పరిష్కారం ఒక గైడ్ లైన్స్ పెద్దలు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు చిన్న పత్రికలు, మధ్య తరహా పత్రికలు, పెద్ద పత్రికలు వీటిని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేయాలి, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గైడ్ లైన్స్ ఏంది, ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా గైడ్ లైన్స్ ఏంది, పత్రికలు అంటే ఏంది, పొలిటికల్ పార్టీ ఓన్డ్ జర్నలిజం ఏంది, ఆ పత్రికలు ఏంది అనే దాంట్లో కూడా డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి. వాటన్నిటిని క్రోడీకరించి కొత్త విధి విధానాలను తయారు చేయండి. కాబట్టి మీకు సంబంధించిన ప్రెస్ అకాడమీ రిలేటెడ్లో ఒక 10 కోట్ల రూపాయలు స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ ముఖ్యమంత్రి విచక్షణ అధికారంతో ఉండేదాని నుంచి ఒక 10 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించే బాధ్యత తీసుకుంటా. అదేవిధంగా ఈ 1100 మందికి ఇచ్చారు కానీ ఇంకా 2000-3000 జర్నలిస్టులు ఉన్నారు. మా వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు కలిసినప్పుడు సార్ రాష్ట్ర విభజన అయింది, అటుపక్క పోయిన వాళ్ళకు కూడా ఇటుపక్క ప్లాట్లు వచ్చినాయి, మొత్తం ఇటుపక్క ఉన్న వాళ్ళకు రాలేదని కూడా మా మిత్రులు అప్పుడప్పుడు నా చెవిలో చెప్తుంటారు. బంజారా హిల్స్ వచ్చినప్పుడు బంజారా హిల్స్లో మీరు భాగస్వాములు అయినరు, జూబ్లీ హిల్స్ వచ్చినప్పుడు జూబ్లీ హిల్స్లో మీరు భాగస్వాములు అయినరు, గచ్చిబౌలి వచ్చినప్పుడు గచ్చిబౌలిలో మీరు భాగస్వాములు అయినరు, చివరికి ఆ కొంపల్లి వస్తే కొంపల్లి దగ్గర పేట్ బషీరాబాద్లో మీరు భాగస్వాములు అయినరు. ఇప్పుడు మా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫ్యూచర్ సిటీ తెచ్చుకుంటుంది కదా, డెఫినెట్గా ఫ్యూచర్ సిటీలో మీరు భాగస్వాములు అవుతారు. हाइड्रा किसी घर या रिहायशी इलाके जहां मकीन रहते हैं को मुनहदिम नहीं करेगा। गो कि यह घर या रिहायशी इलाका FTL यानी तालाब व कुंटे की आबी सतह में या बफर जोन में क्यों ना हो, अलबत्ता गैर आबाद स्ट्रक्चर और नए स्ट्रक्चर्स को जो FTL में या बफर जोन में होंगे उनको मुनहदिम कर दिया जाएगा। हाइड्रा की जानिब से इस सिलसिले में एक वजाहत जारी की गई है। हाइड्रा की जानिब से हालिया दिनों में जो बुलडोज़र कार्रवाइयाँ की गई हैं इस पर भी वजाहत की गई है कि कैसे चंद इलाकों में जो FTL या बफर जोन में आते थे इन बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की गई जो गैर मजाज तौर पर तामीरात कर रहे थे और जहाँ लोग रहते नहीं थे। हाइड्रा ने अवाम से कहा कि वो किसी घर, फ्लैट या ज़मीन जो FTL या फिर किसी तालाब, झील के बफर जोन पर हो ख़तई ना ख़रीदें। इस सिलसिले में ख़रीदारी से कबल इसकी पूरी तरीके से जांच कर लें। इस सिलसिले में हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी के वेबसाइट को देख लें जिसमें आबी इलाकों की तफसील दी गई है। हाइड्रा कमिश्नर की तरफ से अवाम को आगाह कर दिया गया है कि वो पूरी जांच के बाद ही आराजी, घर, फ्लैट वगैरह की ख़रीदारी करें। हालिया दिनों में जो इन्हदाम हुआ है इसकी तफसील बताते हुए कमिश्नर हाइड्रा ने कहा कि माधोपुर में संगम चेरू, मलम्मा पेट चेरू में नई तामीरात FTL और बफर जोन में की गई थी। इसी तरीके से अमीनपुर में कुछ दीवारें और रूम्स और शेड बना दिए गए थे जो गैर आबाद थे। एक साबिक़ रुकन असम्बली ने यहाँ तालाब की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा भी किया था। इसके शेड्स होटल को जो FTL के दायरे में थे मुनहदिम कर दिया गया। उन्होंने यह भी वजाहत की कि यहाँ किसी भी आबाद घर या स्ट्रक्चर को मुनहदिम नहीं किया गया। मलमपेटा चेरू दंडीगल में जहां इन्हदामी कार्रवाई की गई वहां कोई ख़ानदान आबाद नहीं था और यहाँ एक खातून विजय लक्ष्मी जिसे लेडी डॉन कहा जाता है और जो मुख्तलिफ केसों में मुबैना तौर पर मुलविस है की जानिब से तामीरात की गई थी। नाजायज़ काबिज़ीन के खिलाफ भी हाइड्रा कार्रवाई कर रहा है। अपने दफ्तर से जारी एक प्रेस नोट में हाइड्रा के कमिश्नर ने इन तमाम लोगों को यह तयक़ुन दिया कि जो मकान या स्ट्रक्चर आबाद हैं उन्हें नहीं ढाया जाएगा।
तेलंगाना हुकूमत 17 सितंबर को प्रजापालना के जरिए राशन कार्ड और आरोग्यश्री कार्ड के लिए दरखास्तें वसूल कर रही है। इस सिलसिले में कोई गाइडलाइंस जारी नहीं किए गए हैं। गुज़िश्ता प्रजापालना में राशन कार्ड के 11 लाख दरखास्तें ली गई थीं। इसकी यकसुई का कोई पता नहीं है। इस बार भी आवाम को दिलासा देने का काम तो नहीं है। पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरोज की ये रिपोर्ट। तेलंगाना हुकूमत फिर एक बार 17 सितंबर को प्रजापालना प्रोग्राम शुरू कर रही है। इस बार राशन कार्ड और आरोग्यश्री कार्ड के लिए दरख्वास्त ली जाएगी। ये एक खुश आइन फैसला है। अगर हुकूमत की कारकर्दगी और ऐलानात का जायजा लें तो आवाम को यकीन नहीं आ रहा है कि हुकूमत इस बार राशन कार्ड जारी करेगी, इसलिए कि गुज़िश्ता प्रजापालना प्रोग्राम में 5 प्रोग्राम के लिए करीब 1 करोड़ 26 लाख दरख्वास्तें ली गई थी, जिनमें कितनी दरख्वास्त की यकसुई की गई इसका कोई खुलासा नहीं किया गया है। राशन कार्ड के लिए माजी में 11 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। इसमें एक राशन कार्ड भी जारी नहीं किया गया है। रियासत में पहले ही 85 लाख खानदान के पास सफेद राशन कार्ड मौजूद है। 11 लाख नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें दाखिल की जा चुकी हैं। इनके बारे में फैसला किए बगैर फिर से दरख्वास्त लेने का अमल आवाम में उलझन में डालने के अलावा कुछ नहीं है। अगर हुकूमत पर यकीन भी कर ले तो राशन कार्ड जारी होने तक कितना वक्त लग सकता है, इसका अंदाजा लगाना इंतहाई मुश्किल है। ज़राए के मुताबिक दरख्वास्त दाखिल करने के लिए काउंटर्स लगाए जाने हैं। इसकी बाद में घर घर जाकर इसकी जांच होगी। दरख्वास्त वसूल करने का प्रोग्राम वक्त पर हो जाएगा, लेकिन इसकी जांच का काम कब मुकम्मल होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। गुज़िश्ता प्रजापालना प्रोग्राम की दरख्वास्त की यकसुई का कोई पता नहीं, तो इस प्रजापालना प्रोग्राम की दरख्वास्त की यकसुई कब होगी, ये एक बड़ा सवाल है। सियासी मुबस्सरीन का मानना है कि हुकूमत ने आरोग्यश्री कार्ड भी जारी करने का ऐलान किया है ताकि सफेद राशन कार्ड की तादाद कम हो सके, ताकि अवाम सफेद राशन कार्ड को आरोग्यश्री कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सके। अब जबकि हुकूमत अलहदा तौर पर आरोग्यश्री कार्ड जारी करने वाली है, तो हुकूमत हर एक को आरोग्यश्री कार्ड जारी कर सकती है। आसानी से मुस्तहक अफराद ही राशन कार्ड के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। रियासत की मौजूदा सैलाब की सूरत हाल में कई अजला में हालात खराब हैं। इन अजला में यह प्रोग्राम शुरू करना हुकूमत के लिए मुश्किल होगा। हुकूमत ने अब तक नए राशन कार्ड और आरोग्यश्री कार्ड के मुस्तहक अफराद के लिए रहनुमायाना खतूत जारी नहीं किए हैं। हद आमदनी जो रखी गई है, इस पर गुज़िश्ता 10 साल से अमलावरी हो रही है। अगर हुकूमत ने 17 सितंबर से प्रजापालना प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त लेना शुरू भी किया तो इसकी जांच के मराहिल के लिए अमला दरकार होगा, जो हुकूमत के लिए बहुत बड़ा सवाल है। देखना यह है कि अब यह हुकूमत इस बार राशन कार्ड जारी करने कौन सा बहाना तलाश करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट टीवी न्यूज़। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि सैलाब पर सियासत करना ठीक नहीं है। खम्मम में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करने के बाद मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि आफात समावी के वक्त मरकज और रियासती हुकूमत मिलकर काम करना चाहिए। इन हालात में सियासत से बालातर होकर काम करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को मरकज ने डिजास्टर फंड के तहत 1300 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत राहतकारी कामों में तेजी पैदा करे। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से रिपोर्ट रवाना करने के बाद ही मरकजी टीम दौरा करेगी। इसके बाद इमदाद दी जाएगी।
बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर और रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस की 9 महीनों की हुकूमत किसानों के लिए वबाले जान बन चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मिर्चल में ज़रई दफ्तर के सामने खत लिखकर एक किसान ने खुदकुशी कर ली है। सुरेंद्र नामी शख्स ने अपने खुदकुशी के मकतूब में वजीर आला रेवंत रेड्डी का असली चेहरा पेश किया है। सुरेंद्र ने खुदकुशी इसलिए की कि उसके पास राशन कार्ड नहीं है। हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत के लिए सुरेंद्र रेड्डी का मकतूब पंचनामे की तरह है। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने सुरेंद्र का कत्ल किया है। रेवंत रेड्डी हुकूमत में 247 गैर कानूनी असलहा पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कांग्रेस हुकूमत में फिरक़ेवाराना फसादात में इजाफा हुआ है। ఈరోజు రుణమాఫీ విషయంలో మీరు చూస్తే ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయంటే 31 రకాల సమస్యలు ఉన్నాయండి. ఇవి రుణమాఫీ జరగకపోవడానికి కారణాలు ఏంటి అంటే 31 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో అన్ని డీటెయిల్స్ కూడా ఉన్నాయి నా దగ్గర. మేము కింద నేను ఒక శాసనసభ్యుడిగా రివ్యూ చేశాను. అసలు ఏం జరుగుతూ ఉంది అంటే అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన పేపర్ ఇది. సార్ 31 రకాల సమస్యల వల్ల రుణమాఫీ క్షేత్రస్థాయిలో జరగడం లేదు అన్నారు. అందులో ప్రధానంగా మీరు ఇంకొక గమ్మత్ జిమ్మికి ఏం చేసిండ్రు, ఫేజ్ 1 ఫేజ్ 2. ఫేజ్ 1 1,00,000 రూపాయల లోపు మాఫీ, ఫేజ్ 2 1,50,000, ఫేజ్ 3 2 లక్షల లోపు అన్నారు. ఫేజ్ 1 ఫేజ్ 2లోనేమో రైతుల వివరాలు గ్రామాల వారీగా ఇచ్చారు. ఫేజ్ 3కి వచ్చేసరికి బయటపడుతుంది కదా ఎవరికైంది ఎవరు కాలేదు అని చెప్పి మోసం చేయడానికి రైతుల వివరాలు గ్రామాల వారీగా ఇవ్వకుండా బ్యాంకులకు పంపించేసిండ్రు. ఊర్లకు పోతే ఏమవుతుంది? बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर और रुकन असम्बली हरीश राव ने वजीर उमूर मुक़न्नना श्रीधर बाबू से सवाल किया कि असम्बली के कमेटियों के ऐलान में ताख़ीर क्यों हो रही है। मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवामी जवाबदा कमेटी और दीगर कमेटी तश्कील देने में ताख़ीर क्यों हो रही है। हरीश राव ने कौंसिल के अपोजिशन लीडर के बारे में जल्द से जल्द फैसला लेने का मुतालबा किया। हरीश राव ने कहा कि कौंसिल के अपोजिशन लीडर के नाम देने के बाद भी 40 दिन हो चुके हैं, लेकिन कोई फैसला नहीं लिया गया। राहुल गांधी दस्तूर को लेकर घूमते रहते हैं, क्या वो दस्तूर तेलंगाना पर लागू नहीं होता? असेंबली इजलास खत्म होकर 38 दिन हो गए हैं, हुकूमत इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में राहुल गांधी को ट्वीट करेंगे। मरकजी व ममलिकती वजीर बी संजय ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में असातिज़ा के मसाइल की एक सुई नहीं होगी। मीडिया से बात करते हुए बी संजय ने कहा कि उन्होंने टीचर्स से कहा है कि वो सड़कों पर निकलकर तुलबा के मसाइल पर आवाज़ उठाएं। उन्होंने कहा कि टीचर्स अगर चाहें तो सरकार को बदल सकते हैं। अवामी मसाइल पर जमहूरी अंदाज में जदोजहद करने वालों की मदद करेंगे। कांग्रेस को वोट देने से टीचर्स को क्या फ़ायदा हुआ है? मुलाजिमीन को पहली तारीख को तनख्वाह मिल रही है, वो बीजेपी की जदोजहद का नतीजा है। जियो 317 को लेकर टीचर्स परेशान हैं, तो टीचर्स तंजीमें क्यों खामोश हैं? साबिक वजीर आला व अपोजिशन लीडर के चंद्रशेखर राव यगनम करने के लिए जाने जाते हैं। अपने दौरे हुकूमत में केसीआर ने कई यगनम किए हैं। केसीआर इतने दिन से खामोश रहकर नौग्रह का यगनम कर रहे हैं, जिससे पार्टी सतह पर बहस शुरू हो गई है कि ये यगनम पार्टी के लिए किया जा रहा है या अपने ख़ानदान के लिए कर रहे हैं। इसका खुलासा करना पार्टी कायदीन के लिए मुश्किल हो रहा है। ज़राए के मुताबिक इरावली फार्म हाउस में पंडितों की मौजूदगी में खुसूसी पूजा की जा रही है। इस यज्ञ में बीआरएस पार्टी के रुकन कौंसिल कविता के अलावा करीबी अफराद ही शिरकत कर रहे हैं। केसीआर के इस यज्ञ को लेकर सियासी हलकों में बहस चल रही है। क्या ये यज्ञ के बाद अवाम में दोबारा सरगर्म हो जाएंगे? कुछ दिन पहले बीआरएस के साबिक वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि केसीआर बहुत जल्द अवाम में आ जाएंगे। बारिश से दीवान देवड़ी की मुतासरा कमान को असली हालत में लाने उसकी मरम्मत की जाएगी। छत्ता बाजार से मुत्तसिल दीवान देवड़ी की कमान को हालिया बारिश में नुकसान पहुंचा, जिसमें एक शख्स जख्मी भी हुआ। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर अरकान मुक़र्रना मीर जुल्फ़िकार अली और मिर्ज़ा रहमत बेग ने हल्क़े चारमीनार के मजलिसी इंचार्ज मोहसिन बलाला और क़ुली क़ुतुब शाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के अहदेदारों के साथ कमान के मुतासरा हिस्से का मुआयना किया। मुआयने के बाद रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने बताया कि सदर मजलिस की हिदायत पर उन्होंने क़ुली क़ुतुब शाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर, कंसल्टेंट और दीगर अहदेदारों को मुतासरा कमान का मुआयना करवाया। ये फैसला किया गया कि बारिश खत्म होने के बाद इस कमान की मरम्मत की जाएगी और इसको असली हालत में लाने का एक मंसूबा तरतीब दिया जाएगा। कमान के इर्द गिर्द रुकावटों को दूर किया जाएगा। इस मौके पर इब्तदाई मजलिस के अहदेदारान व सरगर्म कारकुनान
मौजूद थे। नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो MP हिदायत के ऊपर आज सुबह छत्ता बाजार दीवान देवड़ी की कमान का आज दौरा किया गया। कुल कुतुब शाह के चीफ इंजीनियर और दीगर ऑफिसर्स और कंसल्टेंट्स यहाँ पर थे, इनको हमने लाकर आज दौरा करवाया। जो परसों कमान का जो पत्थर गिरा था छत का, उसको बनाने के लिए सदर मोहतरम ने कमिश्नर से भी बात की और खुली कुतुब शाह से बात की। इस कमान का जल्द से जल्द काम किया जाए ताकि फिर से किसी का जानी नुकसान ना हो। काम इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द किया जाएगा। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का असम्बली मलकपेट में खवातीन को बाइख्तियार बनाने और मुआशी तौर पर उन्हें खड़ा करने के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला सरगर्म हैं। उन्होंने इतवार को सलीम खान कम्युनिटी हॉल मलकपेट में सिलाई मशीन की तरबती याफ्ता 50 खवातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की। इन खवातीन को सिलाई की 3 माह की तरबियत दी गई। तरबियत देने के बाद उन्हें मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाने मशीनें भी दी गईं। यही नहीं, उन्हें मुख्तलिफ स्कूल्स, इदारे जात व महकमे जात के यूनिफॉर्म्स, दीगर कपड़ों के तिजारती ऑर्डर्स भी दिए गए ताकि वो रोज़गार से जुड़ सकें। इस्तिफ़ादा कुनिंदा ख़वातीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। सालार सिलाई मशीन स्कीम के तहत हल्के में ख़वातीन को सिलाई की तरबियत देते हुए उन्हें मुफ्त मशीनें दी जा रही हैं और कमर्शियल ऑर्डर्स भी फराहम किए जा रहे हैं। इस मौके पर मजलिस के ख़वातीन विंग मलकपेट की जिम्मेदार नाज़िमा और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। నా పేరు ఏమేశ్వరి, నేను ఒక హౌస్ వైఫ్ని. మాకు మార్చ్ ఏప్రిల్ మే నెలలో ఈ మిషన్ సెంటర్ పెట్టినారు. మాకు అసలు ఏం టచ్ లేదు, చాలా బాగా నేర్పించారు. ఈ ఆపర్చునిటీని ఇచ్చిన ఎమ్మెల్యే సాబ్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. నా పేరు విజయలక్ష్మి, మేము హౌస్ వైఫ్. ఈ ఎమ్మెల్యే సాబ్ గారు మాకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు టైలరింగ్ నేర్పించడానికని. 3 months కోర్స్ ఉంది. అది సార్ మాకు ఎలా అయితే ఫుల్ఫిల్ చేశారు అన్ని ఆపర్చునిటీది, దాని తగ్గట్టు మాకు నెరవేర్చారు. టైలరింగ్ మిషన్ అందుబాటులో టైంకి అందించారు. మళ్ళీ సార్ మేము అనుకున్న టైంకి అందరికీ అవకాశంతో పాటు టైలరింగ్ కాకుండా బ్యూటిషియన్ కోర్సెస్ కూడా మళ్ళీ ఆపర్చునిటీ ఇస్తా అన్నారు. మళ్ళీ తర్వాత సార్ మేడం మాకు బాగా ప్రోత్సహించారు. మేము తక్కువ టైంలో అన్నీ నేర్చుకున్నాము. సార్ వాళ్ళకి బాగా ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాం. मैं मुसलम बाग में रहती हूँ, वहाँ पे ब्रांच पड़ा था. ये आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था. बलाला साहब की तरफ से आज हमको मशीन मिली, रोज़गार के लिए कुछ अच्छा करे. बहुत बहुत शुक्रिया बलाला साहब का. कुल हिंद तहरीक सदाए सलातो खैरुम मिनन नौम की जानिब से बरोज़ इतवार बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद इब्राहिम दरगाहगंज शहीदा आसिफ नगर में एक तहनीती तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रुकन असम्बली नामपली मोहम्मद माजिद हुसैन, मुकामी रुकन बल्दिया मोहम्मद मूसा के अलावा दीगर ने भी शिरकत की। YSRCP के साबिक़ रुकन असम्बली के तामीरात को हाइड्रा ने मुनहदिम कर दिया है। साबिक़ रुकन असम्बली के राम भोपाल रेड्डी के तामीरात को हाइड्रा ने मुनहदिम कर दिया। संगारेड्डी ज़िले के अमीनपुर में पेद्दाचेरू के FTL और बफर जोन में राम भोपाल रेड्डी ने जो तामीरात करवाई थीं, इसको हाइड्रा ने कार्रवाई करते हुए मुनहदिम कर दिया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। शुमाली तेलंगाना के अजला के भी आसिफाबाद, मुलुगु, खम्मम में शदीद बारिश हुई। हैदराबाद, रंगारेड्डी, विकाराबाद, मिर्चल, मलकाजगिरी और जुनूबी इलाके नागर कर्नूल, नारायणपेट में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर हैदराबाद के ज़खायर-ए-आब, उस्मान सागर, हिमायत सागर लबरेज हो चुके हैं और इससे पानी का मूसा नदी में अखराज अमल में आ रहा है। मूसा नदी जो बहुत कम बहती है को देखने अवाम की कसीर तादाद नदी के मुख्तलिफ दहानों पर देखी गई। मूसा नदी के इलाके की आबादियों को हुक्काम की जानिब से पहले ही महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का इंतबाह दिया गया। महकमे मौसमियात की जानिब से पीर को भी बारिश की पेश क़यासी की गई है। ज़िले संगारेड्डी में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी मौसलाधार और तेज़ बारिश की वजह से कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। इसके अलावा ज़िले के कई तालाब भी लबरेज हो चुके हैं और सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
कलेक्टर जिला रंगारेड्डी क्रांति वेलुरु ने इस सिलसिले में टेली कॉन्फ्रेंस करके मुतल्लिका ओहदेदारों को बारिश के नुकसानात की तफसीलात पेश करने की हिदायत दी है। शहर के दो बड़े ज़खायर-ए-आब उस्मान सागर और हिमायत सागर से पानी के अखराज हफ्ते की रात से जारी है। इतवार के दिन शाम 5 बजे से उस्मान सागर के 2 गेट खोलकर पानी का अखराज किया जा रहा है। उस्मान सागर की सतह 1790 फुट है। मौजूदा सतह आब 1788 फुट है। उस्मान सागर में इनफ्लो 700 क्यूजिक है, जबकि 226 क्यूजिक पानी का अखराज जारी है। इस तरह हिमायत सागर की मुकम्मल सतह 1763.50 फीट है। मौजूदा सतह आब 1761.30 फीट है। हिमायत सागर में इनफ्लो 1200 क्यूजिक है। 320 क्यूजिक पानी का अखराज किया जा रहा है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी हैदराबाद। हुकूमत हर मुस्तहक़ सहाफ़ी के साथ इंसाफ करेगी। सहाफ़ी पेशावाराना मियार पर पूरा उतरें। सहाफ़ियों को ज़मीन अलॉट करने की तकरीब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। FTL या बफर जोन में आबाद रिहायशी इमारतों को मुनहदिम नहीं किया जाएगा। हाइड्रा की वजाहत। आराजी, घर और फ्लैट वगैरह की खरीदारी से कबल पूरी जांच करने अवाम को मशवरा। प्रजापालना के दूसरे मरहले का 17 सितंबर से आगाज। पहले मरहले की दरखास्तों पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। क्या इस बार भी सिर्फ दिखावे की मशक है? 4 TV की रिपोर्ट।
اور سیلاب پر سیاست کرنا ٹھیک نہیں، مرکز اور ریاست کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ کھمم کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے کے بعد مرکزی وزیر کشن ریڈی کا بیان۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ خبرنامے کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ خدا حافظ۔